Hi all, we have Shubham sir. He has 8 years of experience in training ninth and 10th students with special creative techniques, a memory coach and passionate educator by choice. Now he started his own education platform called Easy Learning. Hi sir, what's up? How are you? Hi sir, I'm fine. How are you? मैं बिंदास. Tell me about yourself, like other than teaching, what's your hobby? Other than teaching, I love learning actually. क्योंकि जब भी मैं सिखाने जाता हूँ ना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड हैव डाइवर्स नॉलेज ऑन वेरियस टॉपिक एटलीस्ट थोड़े से फंडामेंटल्स अगर चीजें क्लियर होती है ना बिकॉज स्टूडेंट्स नाउ इट इज अ वेरी स्मार्ट वो ना टीचर से एक कदम आगे चलते हैं देर आर वेरियस फ्री रिसोर्सेज एंड डिफरेंट थिंग्स तो आई एम टीचिंग समथिंग और मेरे बच्चे को ना मुझसे ज्यादा आता है तो दिस इज अ वेरी लाइक अ नॉर्मल सिनारियो नाउ डेज पहले ऐसा नहीं होता था व्हेन आई वाज अ किड तो ऐसा नहीं होता था एंड स्पेशली मुझे रीड करना काफी पसंद है एंड लाइक गोइंग फॉर वॉक एंड डूइंग समथिंग सम फिजिकल एक्टिविटी Let's start the topic. Like, आज का topic is like more focused on education boards. It could be CBSE, ICC state boards. So it's we are going to do an analysis on a financial part about each boards. So my first question is, can you provide an overview of the direct cost associated with, like, if a student has to prepare for board exams such as CBSE, ICC or state boards? So basically, when we talk about board exams, na, so a student can give it from state board if he is in any state, particularly let's say ki a student, not like right now I'm in Delhi, so it's a union territory here. Okay, so here everywhere you will go, you will find ki there are CBSE schools which is affiliated to NCRT. But let's say a student is in Maharashtra. I have done entire schooling from state board, and that too to be specific I have done from Maharashtra state board. So let's say a student is there and he is in Maharashtra, so he have a choice that he can go for Maharashtra state board. Again, in that particular board there are different categories a student can learn, like in be specific to English medium, he can go for semi English medium, can even if a student can also choose like Urdu medium. There are schools of state board which supports Urdu language. Now the thing is, when we talk about this na ki there is no choice for every subject. Like let's say we are talking about a specific medium which is semi English medium, not English medium. Okay, so there a student has a choice कि जो उसका social study होता है SST, history, political science and geography, he has a choice that he can write that paper in Marathi language, which is the native language for Maharashtra, or he can write it in Urdu, right? So that is the flexibility that is provided in state board. But when and there is a English medium which is specific English, कि सारे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में होंगे except languages. Like if you are studying Sanskrit, you have to write in Sanskrit. If you are studying Gujarati, you have to write in Gujarati. बाकी सारे इंग्लिश में होंगे. Now coming towards the CBSE board, ठीक है, तो CBSE board में भी ये choice है. But again, I have talked to many principals and I'm working by myself, so I know कि यहाँ पे भी वो flexibility देते हैं. Okay, कि अगर आपको social study, especially for social study, if you want to write it in Hindi, you can write, but that too varies from school to school. Okay, because a school will not have all the teachers. They always try to cut down on the cost. Okay, so school will not like hire कि आप हिंदी में भी पढ़ाओ, आप ये भी लैंग्वेज में पढ़ाओ, so they will keep it limited और बच्चे इसको लेके अवेयर नहीं होते. Now coming towards ICSE board, being honest, I have not been involved in ICSE board to that extent, to which extent I'm involved in state board or CBSE. But ICSE board is entirely dependent on English. I know that. Okay, while talking to other teachers, I like that shared कि ऐसा ही होता है यहाँ पे. Now you asked me a question कि financially कैसा रहता है. हाँ, नंबर्स में आप कुछ बता सकते हैं तो. नंबर्स में इफ आई शेयर ना, लाइक लेट्स टेक अ जनरल एग्जांपल, अगर आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, अगर आपका महीने का खर्चा 100 रुपया है, ठीक है, वही खर्चा आपका सीबीएसई में 1200 से 1500 हो सकता है. तो लेट्स से 100 रुपया आ रहा है ना, तो इट विल बी नॉट 1200, इट विल बी 120 रुपीज टू 150 रुपीज, ऐसा जंप आएगा. तो ये स्टेट बोर्ड तो स्टेट वाइज चेंज होते रहेगा ना. स्टेट बोर्ड स्टेट वाइज चेंज होगा, बट अगेन द प्राइस विल बी, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट वाइज कंपैरिजन नहीं कर रहे. वी आर लाइक टॉकिंग कि एक स्टेट बोर्ड है, ठीक है, एक सीबीएसई है जो पूरे इंडिया में फॉलो हो रहा है एनसीईआरटी बेस्ड, और एक आईसीएसई है, ठीक है. तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड सस्ता होगा, उससे आपको 15-20-30% ज्यादा लग जाएगा सीबीएसई में, और उससे 25-30% ज्यादा लग जाएगा आपको आईसीएसई. तो अगेन एंड बीइंग लाइक इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस स्कूल में जा रहे हो.
लेट्स से कि यू हैव एन ऑप्शन, अगर आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में, राइट, इफ यू आर स्टडिंग इन सीबीएसई यू हैव एन ऑप्शन कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जा सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द जगह पे जो जनरल न्यूज में आप देखोगे या फिर लोग जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट दैट डेवलप्ड, बट थिंग्स आर चेंजिंग राइट नाउ। अब देखो कैसा, मैं सोशल मीडिया जैसे आप भी यूज करते हो मैं भी यूज करता हूँ, तो आई हैव सीन कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे टीचर्स जा रहे हैं ना जो बच्चों को अलग अलग पेडागोजीज को अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। पेडागोजी मतलब होता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरी एक टीचर से मुलाकात हुई थी, काफ़ी सीनियर टीचर है और वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है, लाइक सेकेंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड तक शायद। वो बच्चों को नंबर्स कैसे पढ़ाती है, वो बॉक्सेस बना देती है, ठीक है, और उन बॉक्सेस में जो हमारे लूडो का जो डाइस होता है, राइट, वो डाइस यूज करती हैं और टू टीच एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिफरेंट थिंग्स। सी लाइक वो डाइस को ऐसे ऊपर थ्रो करेगी, लेट से एक गिरा तो बच्चा को एक जंप करना है, द चाइल्ड इज गोइंग टू जंप वन, तो दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक ना, जिससे बच्चे के सारे मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स सारे डेवलप हो रहे हैं। ओके, बच्चे को जब 1 से 100 तक की गिनती सिखानी थी तो सी यूज द गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर। तो जस्ट थिंक कि अभी ये गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो नॉट लाइक पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना, तो सिमिलरली अलग अलग टीचर्स हैं एंड वो अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल लोग क्या करते हैं ना कि प्रेफर करते हैं कि हमें वहां पे जाना है, हमें नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स में जाना है, क्योंकि लोग कमा रहे हैं एंड दे वांट कि हमारे बच्चे को बेस्ट फैसिलिटीज मिले। तो जो प्राइवेट वाला है ना वो लेवल गवर्नमेंट स्कूल को अचीव करने में टाइम लगेगा, बट अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल के एक्सपेंसेस बहुत कम है, ठीक है। स्पेशली आई वॉज रिसेंटली टॉकिंग टू वन ऑफ प्रिंसिपल जो केवीएस में थे, ठीक है, तो ही सेड कि वहां पे क्या होता है कि 8 स्टैंडर्ड, अच्छा, और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लड़कियों के लिए कुछ एज तक जो एजुकेशन है वो फ्री है, इट इज फ्री फॉर गर्ल्स, और कुछ बच्चों के लिए भी फ्री है। अगेन जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं वो कास्ट के हिसाब से भी रिलैक्सेशन देते हैं कि आप ओबीसी में हो, एसटी में हो, ओपन में हो, या फिर आपकी एक होता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, ईबीएस कुछ तो ऐसा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आपको मिलता है। अगेन आपके पास कौन सा राशन कार्ड है, किस कलर का है, ओके, तो देर आर वेरियस थिंग्स जिससे एक गवर्नमेंट स्कूल में आपको वो चीजें होती है। अब एक और बात है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो भी किससे एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक सीबीएसई का प्राइवेट स्कूल है, तो दे विल ऑल्सो टेक द जो एग्जाम बच्चा देगा 10th होने के बाद, वो कहाँ से देने वाला है, अंडर दैट पर्टिकुलर बोर्ड ना, सीबीएसई से ही देने वाला है। तो ये जो सर्विसेज होती हैं कि अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है तो स्कूल्स में भी स्कॉलरशिप्स वगैरह सब आता है, बट मोस्टली जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो कई बार पता नहीं लगने देता, राइट, तो बच्चे अवेयर ही नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट एक बहुत अच्छे स्कूल में जो बच्चा जा रहा है उनके पास ऑलरेडी पैसा है फी देने के लिए, वो माइंडसेट बना के जा रहे। आई मैंने आज तक बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऐसा एक पेरेंट या ऐसा एक बच्चा नहीं देखा जो प्राइवेट एक हाई फाई प्राइवेट स्कूल में इसलिए जा रहा है क्योंकि भाई मेरा इनकम कम है और मैं गवर्नमेंट के स्कीम का फायदा उठाऊंगा। राइट, आई डोंट थिंक कि आपने भी सुना होगा कहीं, ठीक है, तो मैनेजमेंट भी वो छुपाती है एंड फी एक्चुअली वेरी करेगा बेस्ड ऑन कि वो स्कूल की लोकेलिटी का है, कहाँ पे है, वो क्या एमिनिटीज दे रहे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, एंड फी तो आज के डेट में मैनेजमेंट डिसाइड करता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो और गवर्नमेंट स्कूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विद्यालय विकास निधि, विद्यालय विकास निधि, ठीक है, तो इसका कुछ शॉर्टकट है, तो फुल फॉर्म है विद्यालय विकास निधि, ठीक है, बी निधि विकास VNN समथिंग, तो द एग्जैक्ट फुल फॉर्म इज दैट। तो ये ना मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनको ये चीज मिलता है, राइट। अब अगेन स्टेट बोर्ड वाले इसको कुछ और बुलाते होंगे, सीबीएसई वाले कुछ और बुलाते होंगे, डिफरेंट स्कूल्स कॉल इट डिफरेंट, तो वो पैसे आता है और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है, बट यू हैव टू पे द एग्जाम फी, अगर एग्जाम फी है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर है तो कई बार आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट स्कूल में, बट वो बहुत मिनिमल होता है, उसमें भी गवर्नमेंट बहुत बार हेल्प करती है बच्चों की, ओके, बट प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में आपको हर जगह रोकड़ा देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ऐसी कोई निधि नहीं है जो आपको मिलने वाला है। So that can be a very dynamic answer to this, and it depends, in a word, it depends on school. Next question is more like more focused about registration and examination fees, like जो different boards का अगर क्या factors contribute करता है ये variation का, अगर उस पर आप बात बता सकते हैं, like if you can like shed bit more light with numbers, more specific numbers. Before you answer this question, I just want to
गिव अ डिस्क्लेमर टू जो भी बंदी लोग देख रहा है ये वीडियो को. दिस वीडियो इज़ नॉट लाइक हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे ये बोर्ड अच्छा है या वो बोर्ड अच्छा है. All the boards are good. There's nothing is good or bad over here. We are just trying to see which board is costing how much. That's it. Yes, sir. Over to you. अब बेसिकली ना जब एक बच्चा किसी स्कूल में जाके रजिस्टर करता है तो देर इज सम काइंड ऑफ एडमिशन फी. इट्स लाइक कि आप जब एक जिम में जाते हो, मेंबरशिप लेते हो, तो आपको स्टार्टिंग में वो कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेंगे, 500 5000 डिपेंड्स की क्या है, राइट. एंड दे कॉल इट एट एडमिशन फी, और फिर एक मंथली चार्जेस हो. सिमिलरली स्कूल्स भी कुछ ऐसे ही काम करती है कि आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो वो एडमिशन फॉर्म पेड होता है, ठीक है. तो उसका एक चार्ज वो लेंगे, एंड वो बोलेंगे कि इससे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आ रहा है वो जाता है. डिफरेंट थिंग्स, दे हैव डिफरेंट रीजन टू एक्सप्लेन. तो दैट विल बी चार्ज्ड. लेट्स से कि स्टेट बोर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इट कैन गो टिल लाइक 6000 8000 10000 12000, डिपेंड्स की 5000 के अब ही होगा मोस्टली. प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल से स्कूल में भी, एक बहुत नॉर्मल सा स्कूल है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ठीक है, प्ले ग्राउंड्स वगैरह है वहाँ पे, और बेसिक चीज़ें दे रहे हैं आपको, दे विल कॉस्ट यू दिस मच. अगेन इट कैन बी ऑल्सो लेस, बट वो स्कूल फिर बस मतलब डेवलपिंग फेज में है वो स्कूल. अब अभी नया नया स्कूल है, एक आध साल हुआ है स्टार्ट होकर के, उसके एक भी बैच निकली नहीं है 10th के आगे, तो उनका फी कम हो सकता है, राइट. बट एक स्टेब्लिश्ड स्कूल, एक जो स्टेब्लिश्ड स्कूल है, इट दे में चार्ज यू 5000 अब इन स्टेट बोर्ड. नाउ सीबीएसई में दिस अमाउंट विल it can change drastically according to the infrastructure of the school, और स्कूल कहाँ पे है. So giving an amount is pretty difficult for me. Like I have worked with a school, वहाँ का जो enrollment charge था that was around 45,000. Okay, so this can change. Okay, but again उसके अंदर भी ना कई बार क्या होता है कि certain things are included. So that depends on school का management, and same for ICSE थोड़ा और ज़्यादा होगा. Mostly जो fee होता है दैट इज एडवांस में कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव समथिंग ऑफ प्रोवाइडिंग सम सर्विस, यू विल ऑलवेज ट्राई कि मेरा कस्टमर मेरे को पहले ही पैसा दे. एनुअल सब्सक्रिप्शन टाइप, कि पूरा पैसा पहले दे दे, यू आर सेफ ना देन, कि बच्चा बीच में जाएगा नहीं. नाउ लेट्स से कि आप बच्चा आ गया, 3 महीना पढ़ा. बेसिकली दिस डजंट हैपन इन स्कूल, बट माइंडसेट, राइट. पीपल थिंक लाइक दैट कि 3 महीना पढ़ा, आप उसको 1-2 महीना आप बोलोगे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्कूल्स राइट नाउ, नॉट बिग स्कूल्स, क्योंकि उनका तो फिर अलग ही चलता है. तो एंड बच्चा चला गया. दिस बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, बट दे ऑलवेज ट्राई कि 6 महीने का फी एक साथ ले लें, क्वार्टरली फी ले लें. मंथली फी के लिए बहुत कम स्कूल्स अलाउ करती है सीबीएसई में, जितना मुझे पता है, राइट. अगेन इट विल वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल. ओके, नाउ दिस इज लाइक रजिस्ट्रेशन एक फी हो गया जब आप पहली बार एडमिशन लेने जाओगे, तो देन कम्स द मंथली फी. उसके अंदर जो सबसे मेन होता है दैट इज अ ट्यूशन फी. अब बेसिकली ट्यूशन फी इन द सेंस कि टीचर, प्राइवेट स्कूल है तो दे हैव टू पे टू द टीचर्स, तो वो कहाँ से देंगे सैलरी, तो दैट विल कम फ्रॉम दैट फी. दिस ट्यूशन फी इज नॉट द ट्यूशन फी कि आपका बच्चा अलग से ट्यूशन पढ़ रहा है, दैट इज योर चॉइस. आप अपने बच्चे को अलग से ट्यूशन पढ़ा रहे हो, विल कम टू दैट लेटर ऑन. बट द अगला जो फी होता है ना, कई बार एक हिडन फी हो सकता है, या फिर आप बोलो कि वो मेंशन भी होता है, डेवलपमेंट फी, राइट. कि स्कूल जो भी डेवलपमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो तो कहीं ना कहीं वो स्कूल आपसे ही कलेक्ट करने की कोशिश करने वाली. दैट इज ऑल्सो अ फी, डेवलपमेंट फी. कई सारे स्कूल्स ना, मतलब अब तो ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है कि कंप्यूटर्स वगैरह सिखाया जाता है, राइट. बट कई सारे स्कूल्स अब ये इंक्लूसिव हो गया, मतलब आप मान के चलो ये है ही है करके. ओके, बट अर्लियर व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज स्टडीइंग इन स्टेट बोर्ड, तो देयर वाज अ चॉइस कि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर सिखाना चाहते हो कि नहीं सिखाना. एंड व्हाट दे यूज्ड टू सी टीचर्स कि कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, Same here, मेरे को भी वही राइट. दे यूज्ड टू टीच अस दिस. और अभी जो लोग देख रहे होंगे वो तो अभी क्या एआई वगैरह बहुत डेवलप हो गया. व्हेन आई वाज अ किड मेरे को एआई का मतलब नहीं पता था. व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग बीटेक, तो मुझे पता था कि एआई क्या होता है, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था. ओके, जब एक सब्जेक्ट पढ़ा था मैंने हाँ, आर्टिफिशियल मेरा टाइम में भी इंटेलिजेंस, तो बस ब्लैक बोर्ड था. आजकल तो सब स्मार्ट बोर्ड्स होता है. स्मार्ट बोर्ड एंड डिफरेंट थिंग. अगेन अगर एक स्कूल स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहा है तो उसका फी अलग होगा, राइट. तो इट चेंजेस, ये बहुत ज्यादा चेंज होता है. सो दिस इज अ थिंग. एंड कई बार अगर पिकनिक्स वगैरह लेके जा रहे हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह लेके जा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स यूजुअली इन चीजों के लिए चार्ज करती है, बट गवर्नमेंट में ये सारी चीजें गवर्नमेंट फंड करती
मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में लाइक देर आर केवीएस के कई सारे स्कूल्स हैं जो इंडिया के बाहर है, काठमांडू में है, एंड देर आर डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया। तो इंटरनेशनल ट्रिप पे भी बच्चा जाता है तो स्कूल के खर्चे पे जाता है। बट बच्चा ऐसा कुछ रिमार्केबल करना चाहिए, राइट? अगर बच्चा कुछ रिमार्केबल कर रहा है, पेरेंट्स अगर उसको मतलब परमिशंस दे रहे हैं, ही हैड प्रॉपर पासपोर्ट एंड एवरीथिंग इन प्लेस, तो स्कूल एक्सपेंसेस देगी उसका। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ बहुत अच्छा भी कर रहे हो तो मोस्टली पेरेंट्स हैव टू बियर दैट। तो इसके कारण क्या होता है ना, कई सारे बच्चों में ना बहुत पोटेंशियल होता है सर, बट वो नहीं कर पाते हैं, राइट? जो मिडिल क्लास से होगा वो कहाँ जाएगा अमेरिका में, बताओ? ही कैन नॉट, उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, तो ही कैन नॉट डू दैट। तो कई बार ऐसा होता है, तो दैट इज द थिंग। एंड एग्जाम फी, कंप्यूटर फी लिया जाता है, एंड टर्म फी, तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग विच कैन कम इन बिटवीन। हाँ, बट अब क्या है ना कि देर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि एक स्कूल स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारे रेगुलेटिंग बॉडी से परमिशंस लेने पड़ते हैं। ओके, तो देर इज अ ट्रांसपेरेंसी कि अगर आप पूछोगे तो बताएंगे, नहीं पूछोगे तो शायद नहीं बताएं। दैट इज नॉट चीटिंग अगेन, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, आपने पूछा तो बताएंगे। तो दैट इज द आंसर फॉर दिस। So that was really insightful about different boards and how the numbers are working. So let's discuss about given the substantial size of India's private coaching industry, how do you see the growth impacting the financial burden on families preparing on board exams? Now, talking about private tuitions, it's totally your choice, right? होता क्या है ना कि बच्चे जो है मोस्टली, और बच्चे क्या स्कूल में भी, बट चॉइस आप बोलते हैं ना, चॉइस होता है क्योंकि पेरेंट्स ओके मुझे इतना परसेंटेज चाहिए, सब परसेंटेज के आगे आगे भाग रहे हैं मैं ना। आपको बता रहा हूँ ना कि व्हेन यू आर पेइंग हायर फी, ठीक है, दिस डजंट गारंटी कि आपको जो स्कूल में टीचर मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। बट आई हैव वर्क विद स्कूल्स एंड आई हैव सीन स्कूल्स, ठीक है, जहाँ पे अगर एक टीचर को लाया जाता है तो एक कंपल्शन होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी ट्यूशन क्लास, फर्स्ट थिंग। नाउ, और दूसरा, कई बार पेरेंट्स को भी बहुत सारे अच्छे स्कूल्स में ये बोला जाता है कि आप प्लीज अपने बच्चे को कहीं और एनरोल मत कराओ। ओके, जब स्कूल छूट जाएगा, टीचर्स आर सपोज टू वेट फॉर लाइक 2 hours एंड देन दे आर गोइंग टू लीव। कुछ टीचर्स रहते हैं बच्चे की हेल्प करने के लिए, ठीक है, देयर इज डिफरेंट थिंग्स गोइंग इन डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स। ओके, तो इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। अच्छा, बच्चे, और देखो एक चीज और है कि अब जो टीचर्स आ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से, जैसे यूट्यूब के कारण आप देखोगे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो अगर हम कॉस्ट कटिंग की बात करने जाए यहाँ, तो यू कैन यूजली सेव मनी है। बच्चे सब कुछ यूट्यूब पे डाला हुआ है, बहुत लोगों ने पढ़ा रखा है, राइट? बट यू आर सपोज टू रीच टू द राइट रिसोर्स, राइट? उसमें अगर कोई आपकी हेल्प कर दे तो। और बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स की अगर मैं आपको बात करूं तो कई सारे टीचर इस माइंडसेट से जाते हैं, और दिस इज, आई डोंट नो अबाउट कि सीबीएसई आईसीएसई में, क्योंकि सीबीएसई इज ऑल ओवर इंडिया, मैं हर स्टेट में तो जाके नहीं रहा हूँ, राइट? बट मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, एंड आई हैव सीन कि बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा ग्रुप बनाते हैं स्कूल। ओके, दे विल फॉर्म अ ग्रुप एंड वो बच्चे को बोलेंगे कि अच्छा तुमको इंटरनल का मार्क्स चाहिए ना, हमारे ट्यूशन में। अब बच्चा प्रेशर में आ रहा है, शायद उसको स्कूल में सब समझ में आ रहा है फिर भी हो जाएगा, शायद वो बच्चा यूट्यूब से कर सकता है, फ्री रिसोर्सेज से कर सकता है। इनफैक्ट नाउ डेज, लेट्स से कि कोई XYZ पब्लिकेशन है, लेट्स से इजी लर्निंग पब्लिकेशन है, ठीक है, एंड इजी लर्निंग पब्लिकेशन अपनी एक बुक लाती है। ओके, और उस बुक में मोस्टली मैं क्या करूंगा, मैं QR कोड्स डाल दूंगा। और इनफैक्ट जो NCERT जो बुक्स बना रही है, SCERT जो बुक बना रही है स्टेट बोर्ड के लिए, उनमें भी कई बार रिलेवेंट यूट्यूब वीडियोस के लिंक होते हैं नीचे, एंड दैट टू बाय प्रॉपर साइंटिस्ट्स, कि कोई रिसर्च फील्ड में काम कर रहा, उनसे रिलेटेड वो वीडियोस डाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई शेयर कि देयर इज अ चैप्टर ग्रेविटेशन इन साइंस, उस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है फ्री फॉल। उस फ्री फॉल का एक बहुत अच्छा वीडियो मतलब डाला हुआ है कि हाँ, फ्री फॉल से रिलेटेड आप प्लीज ये वीडियो देखो, गो थ्रू दिस वीडियो, लिंक पूरा डाला हुआ है, ठीक है? तो बच्चे को देख सकता है ना बच्चा, बट टीचर्स उसको अवेयर ही नहीं करेंगे इस बात को लेकर के, राइट? तो देर आर डिफरेंट थिंग्स, और कई सारे बुक के आगे के पेज पे, पीछे के पेज पे कुछ चीजें लिखी हुई होती है, राइट? तो बच्चे को वो पढ़ना चाहिए। तो देर आर डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में मेंशन होता है कि इस बुक को बनाने के टाइम इन रिसोर्सेज का यूज किया गया है, आप इनको रेफर कर सकते हो। बट लोग अवेयर नहीं होते, और बाहर के जो स्कूल के कई सारे टीचर्स होते हैं ना, वो जानबूझ के ग्रुप बनाते हैं एंड दे आस्क स्टूडेंट कि तुम हमारे ट्यूशन में आओ। और कई बार जो टीचर्स है ना, क्योंकि उनको ट्यूशन में बच्चा चाहिए, राइट, तो वो उसलिए क्या करेंगे, दे लाइक नॉट टीच इन अ गुड वे इन द स्कूल, और कुछ कुछ थोड़ा बहुत सिखा देंगे, और कोई बच्चा अगर नहीं जाएगा ना तो उसको अनवांटेड, उसको हम क्या करेंगे, उस पर फोर्स करेंगे किसी तरीके का, या फिर उसको किसी तरीके से बोलेंगे कि इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट?
तो इस कारण से भी बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, वरना सर आप ही सोचो ना, इतना सारा फ्री मटेरियल तो किसी को जाने की क्या जरूरत है। बट दैट इज वन थिंग। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि कई बार पेरेंट्स अपने चॉइस से भी भेजते हैं। ओके, एंड अगर हम फी की बात करें कि भाई कितना पैसा लगेगा हम ट्यूशन में भेजेंगे, तो मोस्टली एक ऑफलाइन क्लास का ना, अब अभी लेटेस्ट ये कल्चर चला है कि एबीसीडी नाम की कोई कंपनी है, और वो एबीसीडी कंपनी अपने बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल खोल रही है ट्यूशंस की भी, राइट। कि भैया ये ले लो वो ले लो, और कई बार उनका फ्रेंचाइजी 1-2 साल में बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म, मतलब नहीं कर पाता अच्छा परफॉर्म, एंड उसके कारण होता क्या है कि जो इनिशियल लेवल पे जो लोग होते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, उनका पैसा बर्बाद। एंड व्हाट इफ कि अगर वो बच्चा 10th और 12th का है सर, तो पूरा साल फिर गया ना सर उधर, और वो मोटा पैसा लेते हैं फ्रेंचाइजी वाले जो भी लोग होते हैं, राइट। ये तो है ना सर, वो मोटा पैसा लेते हैं, तो दैट इज द थिंग। अब एक छोटी सी जगह की बात करते हैं। अब ये जो जो भी लोग अगर मल्टीपल ब्रांचेस अगर कहीं खोल रहे हैं, तो वो एक बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा है, शायद बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, शायद कहीं से पैसा लाया है, राइट, फंडिंग। बट अगर एक लोकेलिटी, एक छोटे से जगह की बात करते हैं, वहां पे क्या होगा, एक छोटे से लोकेलिटी में ज्यादा 2 या 3 स्कूल्स होंगे, उसमें से एक स्कूल बहुत अच्छा होगा, दूसरा उसको कम्पीट कर रहा होगा, तीसरा मतलब अभी उठ रहा है, बच्चा है। ओके, सो दैट इज द वे। अब क्योंकि एक स्कूल में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं, आप सोच के देखो। एक 10th स्टैंडर्ड है, तो ए डिवीजन, ए बी सी डी, डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है, वो एरिया कौन सा है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ स्कूल्स भी बढ़ जाएगा, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बट आपको लगता नहीं, लाइक, सॉरी टू कट यू, लाइक आजकल प्राइवेट स्कूल या जो भी इवन गवर्नमेंट में भी होता है, इवन सीबीएसई, ऑल द बोर्ड्स, लाइक एक सेक्शन में लाइक मिनिमम 30 to 60 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट, लाइक ओके, पेरेंट्स को लगता है ठीक है, मेरा बच्चे लोग लाइक क्लास में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, उन लोग को वन ऑन वन अटेंशन मिलता नहीं, उसलिए चलो ठीक है ट्यूशन में लगा दो। आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट सर। एक्चुअली ना देयर इज अ रूल, मुझे एग्जैक्टली ये रूल का नंबर नहीं पता है, मैंने पढ़ा था, मैंने इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, कि एक टीचर पे इतने स्टूडेंट होने चाहिए, राइट। देयर इज सम रूल जो गवर्नमेंट कहती है, बट नो वन फॉलोज इट। अब मैंने वो कहीं तो व्हेन आई वाज डूइंग माय बीएड, तो मैंने ये पढ़ा था, मेरे किसी क्लास में टीचर बता रहे थे कि 1:this का रेशियो होना चाहिए एक आइडियल क्लासरूम में, बट इट इज नॉट फॉलोड। अब जहां पे, अब कई जगह पे क्या होता है, ए बी सी डी ई ऐसे डिविजन्स बढ़ते चले जाते हैं, और प्राइवेट टीचर्स पे इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, मत पूछो, ठीक है। तो ये तो है ही है। और हम ट्यूशंस की अगर बात कर रहे थे, बीइंग स्पेसिफिक, तो क्या होता है कि बच्चा फिर वहां जाएगा डर के मारे, ठीक है, और वो रेशो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि वो डिविजन्स में बांट देंगे, और एक क्लास में यूजुअली कितने होते हैं, 50-60 बच्चे तो मिनिमम रहते हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल में यही नंबर और बढ़ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, तो लाइक मैंने अपनी 11th-12th एक गवर्नमेंट स्कूल से किया, ओके। 11th स्कूलिंग ही मानेंगे ना हम, तो कॉलेज उसको नहीं बच्चे मान लेते हैं, कॉलेज मान लेते हैं, राइट। हम तो स्कूल ड्रेस पहन के जा रहे थे, मैं तो स्कूलिंग ही बोलता हूँ उसको। मेरी क्लास में सर कितने बच्चे होंगे, कैन यू गेस? 30? एक जीरो लगा दो सर। There were around not 300, but there were around 110-120 students. It was a big classroom by the way. और इतना एक बेंच पे 5-5 बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर्स वेर सुपर टीचर इन माय स्कूल। मैं जब 11th-12th में था, मेरा तो एजुकेशनल जर्नी वहां से, मेरे को एजुकेशन में इंटरेस्ट आ गया इतना बच्चा देख करके सर, ठीक है। अब आप देखो क्या देख के इंटरेस्ट है, नॉट टॉक अबाउट दैट, बट मेरा इंटरेस्ट आ गया एजुकेशन में। तो ट्रस्ट मी, टीचर्स बहुत सुपर पढ़ाते थे, लेकिन क्लास में इतने बच्चे भरे पड़े हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है वो कुछ ही लोगों को समझ में आ रहा है। अब एक बच्चा क्या करेगा सर? अच्छा, साथ ही साथ माइंडसेट भी ऐसा होता जा रहा है ना, कि जो पेरेंट्स है वो बच्चों को बोलते हैं हाँ ट्यूशन तो भेज ही देंगे हम, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? देयर इज नो फियर ऑफ मिसिंग आउट ना। अगर अभी मैं और आप ये मीटिंग लाइव ले रहे हैं मान लो, और हम इसकी रिकॉर्डिंग दे ही ना किसी को, तो जो व्यूअर है वो दिखते रहेगा। लेकिन क्योंकि हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, हम कन्वीनियंट बना रहे हैं और ज्यादा, तो वो क्या बोलेगा, 5 मिनट आज देखूंगा, 5 मिनट कल देखूंगा, 5 मिनट परसों देखूंगा, टुकड़े टुकड़ों में देखूंगा इसको। तो दैट इज द रीजन। और एक हम छोटे जगह की बात कर रहे थे, तो छोटे जगह पे जो फी होता है 10th स्टैंडर्ड की, अगर मैं अभी करंटली बताऊं, एक छोटी सी जगह, तो बेसिकली 15 to 25,000, एंड दैट डिपेंड्स कि क्लास ने कितने टॉपर प्रोड्यूस किए। ये सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब ये कैसे काम करता है कि लेट्स से कि यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आई एम अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और हम क्या करेंगे, हम दोनों दोस्त हैं, ओके, विल गो टू अ क्लास,
उस क्लास में हम दोनों ने बहुत मेहनत की और उस क्लास में आ गया रिजल्ट 95 97। अब क्लास का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्लास तो सबको पढ़ा रहा था, 4 बच्चे फेल भी हुए उस क्लास में, बट नो वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट द टॉपर्स, हम दोनों की बातें होंगी। अब हमसे, अब हम, और वो क्या करेंगे पता है? आपका बोर्ड बनाएंगे, बिल बोर्ड बनाएंगे, बड़ा 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 फोटो लगाएंगे आपका, ठीक है? आप एक स्टार से कम नहीं हो यहाँ पे। ओके, अब आपको लोग देखेंगे और बड़ा बड़ा नाम देखेंगे, ABCD एकेडमी, ठीक है? अब जब ये नाम वगैरह देखेंगे तो पीपल विल स्टार्ट, जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में क्या आता पता है? ये ट्यूशन में टॉपर बच्चे हो जाते हैं, राइट? इस ट्यूशन में जाके बच्चे टॉपर हो जाते हैं। क्या वो एक बिलो एवरेज बच्चे को एवरेज भी नहीं बना पाता है बहुत बार वो ट्यूशन? क्यों? क्योंकि वो ट्यूशन क्लास में हर अच्छा बच्चा जा रहा है, अच्छा बच्चा रिजल्ट आ रहा है, तो वो सर्कल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बट ट्रस्ट मी ओवर दिस, उसके कारण एक ट्यूशन अगर कोई अच्छा भी परफॉर्म करना चाहे, उस पर भी प्रेशर बनता है। नाउ ही लाइक, वो हम दोनों पे ही ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि हमसे उनको रिजल्ट पता है कि गारंटीड आने वाला है। एक बिलो एवरेज पे वो क्यों ध्यान देंगे? बट एक बिलो एवरेज भी वहां पे आएगा, बट वो कितना बेनिफिट कर पाएगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट स्टूडेंट। माइट भी अच्छा पढ़ा रहे हो, माइट भी अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, इट डिपेंड्स कि कौन सा ट्यूशन है, कौन से टीचर है, क्या है। बट द कॉस्ट इज वेरी मच, मतलब बहुत हाई कॉस्ट है ट्यूशन क्लासेस का, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है। लाइक मैं दिल्ली में हूँ, एंड दिल्ली में लाइक लेट्स से कि एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, द फी इज 25-30,000, 45,000, 50,000 फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। या ट्रस्ट मी, फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। एंड टीचर टीचर पे भी वैरी करता है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हो। प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हो तो और ज्यादा, मिनिमम भी है, मतलब ऐसा आपके ऊपर है, आप कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनना चाहते हो। राइट, ये ऐसी बात है। सो दिस इज ट्रू, यू वोंट बिलीव। एक बार क्या हुआ कि वैसे दाढ़ी वाड़ी मैं निकाल दूं तो बच्चा ही लगता हूँ। ओके सर, तो एक बार मैंने सेविंग की थी, एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ प्लेस, दिल्ली में एक जगह है छतरपुर का, आई यूज्ड टू लिव देयर। तो आई वाज गोइंग देयर, मैंने क्लास का बोर्ड, टॉपर वॉपर के फोटो लगे हुए हैं, तो मैंने ऐसा शॉर्ट्स पहना था एंड टी शर्ट पहना था, एंड ऐसे कपड़े लिए थे, मैंने जूते वूते खरीदे थे। मैं ऐसा गया, मतलब ये क्लास किसका है? एंड वहाँ पे मुझे बिठाया गया, चाय पिलाया गया, ठीक है? उनको पहले लगा मैं बच्चा हूँ, ऐसे मैंने बोला हाँ मैं बच्चा हूँ। एंड दे सेड कि अगर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करोगे तो ये वाले सर पढ़ाएंगे, वो इतना पैसा लेंगे, इस बैच में खाली 3 बच्चे पढ़ेंगे, इस बैच में 5 बच्चे पढ़ेंगे, एक सस्ता बैच भी था वहाँ पे 25 बच्चे पढ़ेंगे, कीजिए सर। राइट, सो देयर इज डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो। हमें क्या, जो हमें दिखता नहीं, हमें लगता है कि वो है ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। अभी अगर रात है और अगर हमें सूर्य नहीं दिख रहा है, तो दैट डजंट मीन कि सन डजंट एग्जिस्ट, राइट? तो दिस इज द थिंग, एंड फीस विल चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये CBSE में और ज्यादा होगा, ICSE में और ज्यादा होगा। आप वो परसेंटेज का अंदाजा लगा लो। एंड मोस्टली ICSE वगैरह में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग फी, ट्यूशन फी तो लोग कोशिश करते हैं कि एक साथ ही मिल जाए, क्योंकि स्कूल तो बच्चा बार बार नहीं बदलेगा, लेकिन ट्यूशन तो बदलता ही बदलता है, राइट? अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, रिफंड जैसी पॉलिसी बहुत कम जगह ही एग्जिस्ट करती है, और ये डिपेंड करता है कि रिफंड मांगने वाला कौन है। समझ आप समझे गया। सर? कि मांगने वाला कैसे मांग रहा है। कई बार साम दाम दंड भेद सारा अप्लाई करके भी नहीं मिलता, और कई बार मिल भी जाता है। एंड अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप फी दे रहे हो किसी ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में तो ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए है, लेकिन अगर आप कैश पैसे दे रहे हो तो प्लीज उनके लेटर पैड या जो भी उनका रेसिप्ट होगा कलेक्ट करना। आई हैव सीन पीपल जो पैसा लेके ना बोल देते, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। और मोस्टली सर देखो, हर एक इंसान तो कुछ भी करके पैसा मांग नहीं लेगा ना सर। और तगड़े से पंगा कौन लेता है जल्दी? लोग नहीं लेना चाहते हैं पंगा, तो उससे लिया जाता है जिसको दबाया जा सकता है, और वो इंसान फिर ना फंस जाता है। तो इट्स अ रिकमेंडेशन, जो भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं प्लीज रिसिप्ट लिया करो, और ऐसे पेपर पे लिख करके नहीं, प्रॉपर उनका जो भी लिखा होगा। और अगर ये सब नहीं है तो उस क्लास में मत भेजो, योर सेव योर हार्ड अर्न मनी। यूट्यूब चैनल बहुत सारे, किसी भी चैनल से पढ़ लो। दैट वाज द आंसर। Shubham sir का भी YouTube channel, so you guys can also check out his channel. He makes amazing content, so do check it out. So sir, मेरा दूसरा question है, like what advice do you have for parents and students to manage the cost associated with study materials or and book effectively? तो बेसिकली आई गिव यू एग्जांपल। अब देखो, ये चीजें बदलते रहती हैं, राइट?
क्योंकि गवर्नमेंट बदल सकती है, पॉलिसीज बदलती हैं, राइट, वेबसाइट बदल जाते हैं लोगों के, उस पर कंटेंट अपडेट होता है। नीट का जो एग्जाम है वो आई हैव चेक, लाइक 1 साल पहले मैंने चेक किया था, एनटीए कंडक्ट करती है, राइट सर। एनटीए कंडक्ट्स नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नॉट रॉन्ग विद द फुल फॉर्म अगेन। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने बोला यार थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। इट वॉज पार्ट ऑफ माई एकेडमिक्स व्हेन आई वाज डूइंग बीएड, तो सारे एजेंसीज के बारे में मुझे पढ़ना था। फिर और भी बहुत सारे, एनएफटीएल करके एक है, वी हैव इग्नू, आपने सुना होगा इग्नू का नाम, राइट, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। तो देर डिफरेंट थिंग्स। अभी हम स्कूल लेवल की बात करते हैं, तो जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं, राइट, वो, और कई बार जो भी उसके से रिलेटेड जो बॉडीज है गवर्नमेंट के, उन लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना के डाले हुए हैं। अब एक बच्चा सर मान लेते हैं कि नीट की तैयारी कर रहा है 11th-12th में, और कई सारे बच्चे तो सर 8th-9th से स्टार्ट कर देते हैं। एक तो सबसे पहले आप पैसे बचा सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, वही लोगों का आप जाके पेड सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो बाद में, राइट। एंड सर यू वांट, आई नो कि दैट्स अ फनल, राइट। तो कई बार फ्री में सब अवेलेबल होता है, बट पेड शायद हमें कई जगह पे आपको जेन्युइनली इसलिए करना पड़ता है कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में मिले और आपको सही चीज मिले, राइट। तो बहुत सारी, जैसे लेट्स से डाइट वाला एग्जांपल, कि बहुत सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है। आप समोसा भी खा सकते हो फैट के लिए तो राइट और आप बादाम भी खा सकते हो पर आपको समोसा खाना है, बादाम खाना है या पकोड़े खाने हैं, ये बताने के लिए तो कोई चाहिए ना। तो फ्री में अवेलेबल वाले रिसोर्स के साथ सर ये वाली बात हो जाती है कि कोई बताने वाला चाहिए कि भाई क्या यूज करना है, वन थिंग। तो बट देर आर डिफरेंट बॉडीज जहां पे ना सर बहुत अच्छे आईआईटी के प्रोफेसर, अब सर मान लो आई हैव नॉट डन आईआईटी, मैं आईआईटी में ना जा पाया, ठीक है, ना मुझसे हो पाया, और थोड़ी इच्छा भी नहीं थी सर, कभी तो ज्यादा ट्राई भी नहीं किया, ठीक है। तो बट जब मैंने ये देखा कि यार आईआईटी एंड टीचर, जो आईआईटी में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर है, उन्होंने हर एक टॉपिक पे अपने अपने वीडियोस डाल रखे हैं। जो बच्चे जेई के लिए पढ़ते हैं, नीट के लिए पढ़ते हैं, आपने नाम सुना होगा एचसी वर्मा सर, उनकी बुक है। कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि एचसी वर्मा सर का चैनल है, उस पे वो बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर करते रहते हैं। अब आप सोचो सर, जिस के बुक से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट डाल रहे हैं, और वो कमेंट पे जो बच्चे पूछते हैं ना, सर ऑलवेज आंसर्स दैट। अब ये किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा प्रमोशन नहीं हो रहा ना सर उनका कैसे पता लगेगा लोगों को। इसके अलावा बहुत सारे बुक के ऑथर्स होते हैं जो अपना डालते हैं, बट सर उनको कोई नहीं देखता। उससे ज्यादा मैं सर बोलूं, लाइक, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट जो छपरी यूट्यूबर्स होते हैं सर, ठीक है जो क्या पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं पता होता है, खाली व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं समय के हिसाब से, ठीक है, उनको लोग देख रहे हैं। आप बताओ मुझे सर, प्रॉब्लम ना सर पेरेंट्स के साथ भी और स्टूडेंट के साथ भी है। उनको अगर आप जेन्यून कंटेंट दोगे ना, आप सर आप देखना यूट्यूब चैनल पे, और जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी देखना, कि जो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स होंगे जो केवल पढ़ाएंगे, उनका लाइव चल रहा है, एक आदमी देख रहा है, वो भी वो खुद अपना फोन लेके, आप बताओ। और जो लोग बोलेंगे दिल दहला देने वाला मोटिवेशन, ठीक है, ये कर लो तो वो हो जाएगा, 5 दिन में टॉपर, ऐसे लोगों के वीडियोस पे सर 1-1 लाख लोग देखेंगे। गलती किसकी, आप मुझे बताओ। क्लिकबेट। बच्चे की भी गलती है, राइट। तो पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए ना कि हमारा बच्चा जिसका डेटा, अब मान लो सर कि कोई अगर आपको देख रहा है और आपसे कोई स्किल सीख रहा है, तो आपने उतना किया है, अलग अलग जगह पे आपने काम किया। अगर कोई मुझसे सीख रहा है तो मेरे पास डिग्रीज है पढ़ाने के लिए, राइट। तो बीएड करने की मुझे क्या जरूरत थी, मैं तो पढ़ा रहा था बढ़िया। बट मुझे पता है ना कि उससे क्या फायदा हो, तो आई एम क्वालिफाइड कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं। बट क्या सब लोग क्वालिफाइड है? कोई पूछ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तो लोग कर रहे हैं कुछ भी, राइट। इसके अलावा सर अगर हम बात करें ना, तो देर आर वेरियस फ्री रिसोर्सेज। आप बहुत सारे वेबसाइट पे आपको बुक्स मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके लिए तो सर आपको ना तो अपना नंबर डालना पड़ेगा, ना तो अपना नाम डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी, कुछ भी साइन अप भी नहीं करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में है भाई। और बुक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, फ्री वीडियोस, और कई सारे गवर्नमेंट एजेंसीज ने, जैसे एनटीए के वेबसाइट पे अगर आप जाके देखना, ठीक है, अभी अगर वो चेंज हो गया होगा तो आई डोंट नो, बट वहां पे जेई और नीट के लेक्चर्स डाले हुए हैं, कोई नहीं देखता आप समझ रहे हो सर, बट कोई नहीं देखता, ये प्रॉब्लम है। अगर कोई देखता होगा तो मुझे नहीं पता। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि व्हेन आई वाज इन माय 11th-12th, तो थोड़ा थोड़ा घर में माहौल बनने लगा था कि शुभम इंजीनियरिंग करेगा, कंप्यूटर साइंस में करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे 11th से 12th की तरफ मैं जा रहा था, माय फादर वाज गेटिंग मोर स्पेसिफिक, पहले की साइंस लेगा, क्योंकि अब बच्चे को कहाँ समझ में आ रहा है। और हमारे, मैं लाइक लॉन्ग बैक इन 2015 इतना डेवलपमेंट भी नहीं था सर, 1 GB इंटरनेट पूरा महीना चलाना होता था,
राइट तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ना। तो मोस्टली मेरे को ग्रेजुएशन माय फादर सजेस्टेड मी कि इंजीनियरिंग करो एंड ही टू, क्योंकि वो देख रहे थे अपने उस टाइम में इंजीनियरिंग वाज इन बूम, राइट। तो मैं बोला कि इंजीनियरिंग करनी है तो हमने को कोई लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, राइट। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए हैव टू लर्न सम लैंग्वेज कोडिंग के लिए। तो यूजुअली जो लैंग्वेज से बच्चे स्टार्ट करते हैं दैट इज एचटीएमएल पढ़ लेते हैं बेसिकली, राइट। दे गो फॉर सी, सी प्लस प्लस। अब हुआ क्या सर कि मैंने ना एचटीएमएल के लिए यूडीमी पे एक कोर्स ज्वाइन कर लिया। एवरीवन नोज यूडीमी, राइट, डिफरेंट वेबसाइट। तो वहां पे बहुत अच्छा पढ़ाया गया। दैट वाज अ कोर्स फॉर वो 400 रुपीज। लाइफ टाइम के लिए जो भी अपडेट्स होंगे डाला जाएगा, उस पर करोड़ों बच्चे इनरोल्ड है। आप समझ रहे हो। इसके अलावा अभी वहां से वो तो मैंने सीख लिया धीरे धीरे, इट इज वेरी इजी। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में गया तो हमारे सब्जेक्ट्स थे जिसमें सी था एग्जाम्पल, ठीक है। अब आजकल ना, क्योंकि मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे भी सी वगैरह पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस पाइथन, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, राइट सर। अभी कुछ तो ऐसा भी हुआ था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी एप्लीकेशन बना रहे थे राइट। सो अभी सर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी फैंटास्टिक चैनल, इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सौरभ शुक्ला सर, ठीक है। आई डोंट नो आप जानते हो नहीं जानते हो, आई डोंट नो हिम इन पर्सनल, बट पूरा का पूरा सी सी प्लस प्लस डाला हुआ है। बहुत पुराने वीडियोस है सर, तब तो ऐसा फुल एचडी जैसा भी वीडियो नहीं था उनका, राइट। अलग ही एस्पेक्ट रेशो में उनका वीडियो बना हुआ है, बट इतना फैंटास्टिक पढ़ा रखा है ना। मैंने सर पूरा सी और सी प्लस प्लस वहां से किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया राइट इंजीनियरिंग में पूरे। और सर आप भी देखो ना, जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है 11th 12th के बाद, कॉलेज वॉलेज में बच्चे कहाँ खर्च करते हैं सर पैसे। ज्यादा से ज्यादा चीजें तो जुगाड़ से हो जाती है। तो 9th 10th 11th 12th के लिए भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेज, बट आपको ना किसी ऐसे इंसान से पूछना पड़ेगा जो रिसोर्स को यूज कर चुका है, क्योंकि आपको ऐसा सपना तो आएगा नहीं ना कि एबीसीडी करके कुछ है जहां पे होने वाला है। तो यू शुड लाइक बातें करनी पड़ेगी लोगों से। अभी जैसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, देन इट इज गोइंग टू हेल्प एट द एंड। तो देयर आर वे, हर एक चीज का ना सर ऑल्टरनेटिव है। True, सवाल ये completely है agree. कि तुम समोसा खाना चाहते हो कि बादाम खाना चाहते हो, यू हैव टू चूज दैट राइट। और आपको ढूंढना पड़ेगा सर। वो कहते हैं ना, प्यासा जो है उसको कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं तो नहीं आने वाला, कुआं जहाँ है वहां है राइट। सो दैट इज द थिंग सर, देयर इज ऑल्टरनेटिव। True, true, true. Completely agree on this point. So my next question is like with the increasing reliance on technology and the internet for education, especially post pandemic, how significant are this cost and how can families mitigate them? सर यू हैव टू कट डाउन, राइट। सर आप देखो, एक तो ये हो सकता है ना कि यू हैव दैट रिसोर्सेज जो आपको चाहिए, पैसा है आपके पास, सिंपल इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। आपके पास ट्यूशन देने के लिए, ट्यूशन में देने के लिए एक्स्ट्रा पैसा है, बहुत अच्छे स्कूल में भेजने के लिए है। बट देर आर डिफरेंट, देखो गवर्नमेंट स्कूल्स में आप भेज सकते हैं ऑर्डर टू कट डाउन, राइट। दैट्स एन ऑप्शन। और ऐसा नहीं कि सारे गवर्नमेंट स्कूल बुरे होते हैं, देर आर वेरियस गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे, वो भी पता है गवर्नमेंट स्कूल में भी डिपेंड करता है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है या फिर जो उसको रन कर रहे हैं एट द एंड, जिनके हाथ में फंड आ रहा है, वो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट के पास जो फंड आ रहा है वो अल्टीमेटली टैक्स से ही जा रहा है ना। तो अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, राइट। और जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो सही करेंगे। हर चीज़ का सॉल्यूशन ये थोड़ी है कि वहाँ नहीं मिल रहा है तो बच्चे को 6 घंटे स्कूल भी भेजो ओके, उसके बाद उसको 3 घंटा ट्यूशन भेजो, तब तो कॉस्ट लगेगा ही, राइट। सो ऑप्शन वन कि आप फ्री रिसोर्सेज पे जाओ, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसका फायदा उठाओ, ठीक है। डिफरेंट स्कीम्स कीप कमिंग एंड चेंजिंग, तो आप उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमने यूट्यूब के बारे में बात की लास्ट क्वेश्चन, सर यूट्यूब वीडियोज है, वहां से बच्चा पढ़ सकता है। कॉस्ट, मेन कॉस्ट क्या आता है, आप जो स्कूल में जा रहे हो वो तो आपको देना ही है। आपका यहाँ पर मेन कॉस्ट है डेटा, इंटरनेट. इंटरनेट का कॉस्ट तो मेनली क्योंकि हाँ बच्चा घर में रह के पढ़ने वाला है, तो यू हैव टू बियर दैट, बट अगेन दैट कैन बी शेयर्ड ना। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब लाइक आई वाज व्हेन आई वाज इन लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, तो व्हाट आई डिड कि नॉट इन स्कूल, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में तो इतना नहीं था डेवलपमेंट, बीइंग ऑनेस्ट। तो जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मैंने अपने घर में वाईफाई लगाया था और मैंने अपने पड़ोसी को दिया था पासवर्ड। 500 रुपये बिल आता था, 250 वो देते थे, 250 मैं देता था, राइट। तो आप एक अच्छा वाईफाई लगाओ, उसका एक अच्छा राउटर रखो जिसकी वो ज्यादा हो, और 3 लोग मिल करके यूज करो। वाई टू गो ऑन द चीपेस्ट प्लान, टेक द बेस्ट प्लान ना, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उससे उससे बेस्ट प्लान लो, बेस्ट बैंडविड्थ लो। और एक फ्लोर पे, अगर आप एक फ्लैट में रहते हो कंसीडरिंग, ठीक है, या फिर आप शायद एक चॉल में रहते होंगे, शायद आपका, अगर आपका खुद का सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तब तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए सर, राइट राइट। तो हम ये सवाल तो उसके लिए कर रहे हैं जिसका सब कुछ अच्छा नहीं है।
राइट, यू वांट टू कट डाउन, राइट। तो अगर आप एक चॉल में रहते हो लेट से, या फिर अगर आप एक फ्लैट में रहते हो, तो एक फ्लोर पे हो सकता है सिंगल स्टोरेज तो नहीं होगा। अगर आप ऐसे हम इस सवाल पे बात कर रहे हैं तो शायद 2 फ्लैट होंगे उस फ्लोर पे, या 4 होंगे या 3 होंगे। तो आप एक अच्छा लगाओ, उसको बाहर लगा दो राउटर को। जरूरी थोड़ी कि आप अपने घर में लगाओगे, राइट। एंड उसको यूज करिए पूरा फ्लोर में। आपको सर आपके पास एयरटेल का, लेट से मेरे पास सर एयरटेल का फाइबर है, या फिर जियो एयरटेल जो भी हम यूज करते हैं, तो ऐसा मैं अपना पासवर्ड मैंने अपने पड़ोसी को भी दे रखा है। तो ऐसा थोड़ी कि सर मेरा बिल ज्यादा आ रहा है। राइट। वो तो अब तो बहुत सस्ता हो गया ना ये चीज। तो ये एक है कि आप शेयर कर सकते हो, राइट। नॉट शेयरिंग लाइक नेटफ्लिक्स पासवर्ड जहाँ पर कंडीशन अप्लाइड हो जाता है। नहीं, लोग तो सर बचा के रखना चाहते हैं पासवर्ड। राइट। मेरे एक दोस्त का सर पासवर्ड क्या था पता है? मांग भिखारी नहीं दूंगा। आप बताओ सर। तो मैंने उससे एक बार पूछने गया, भाई जरा पासवर्ड बताया ना। मैं उसके घर पे गया तो कहता मांग भिखारी पर नहीं दूंगा। मैं बोला व्हाट भाई, क्या बोल रहा है? कह रहा मांग भिखारी पर नहीं दूंगा। मैं बोला भाई क्या कह रहा है? पासवर्ड। मैं बोला ओके। देन आई गॉट इट। अब बताओ सर, लोग ऐसे पासवर्ड रख रहे हैं। तो बट इट कैन बी शेयर्ड इन ऑर्डर टू कट डाउन द कॉस्ट। अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आता है, अगर आप दूर है तो उसमें भी किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है कि आपने एक ऑटो कर दिया जिसमें 4 लोग जा रहे हैं और सब लोग मिल करके पूल कर रहे हैं, राइट। कैब वगैरह अगर यूज कर रहे तो हो तो। ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट वाला था, लाइक जहाँ पर इफ़ यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स। अगर बच्चे लोग कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो लाइक आउटसाइड फ्रॉम देयर होम, कैसे वो कैसे मिटिगेट कर सकते हो, लाइक हाउ कैन दैट दे कैन मैनेज दैट। अगेन शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। राइट। तो यू हैव टू शेयर। अगर आप बचाना चाह रहे हो, देखो दो चीजें होती है। एक होता है कि आप चॉइस ले रहे हो, ठीक है, कि आपको ये करना है, राइट। और दूसरा एक होता है कंपल्शन, राइट, कि आपके एरिया में जो स्कूल है वो बहुत दूर है। अब आप घर को उठा के तो स्कूल के पास ले नहीं जा सकते, और ना स्कूल को उठा के घर के पास ला सकते हो, राइट। तो इट्स अ कंपल्शन कि यू हैव टू ट्रैवल। कई बार स्कूल जो होती है वो फैसिलिटी देती है बसेस वगैरह की, तो उसको यूज करो, वो बहुत सस्ता पड़ता है यूजुअली, क्योंकि और दैट इज ऑल्सो सेफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं और स्कूल एक अथॉरिटी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो दैट इज मोर सेफ आई बिलीव, राइट। और दूसरा, अगर वो नहीं यूज करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि वो महंगा है, बिकॉज की जो फी होगा ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बस फी जो होगा वो डिपेंड करता है ना कि कितना दूर हो आप। अगर आप स्कूल से 1 ही किलोमीटर दूर रह रहे हो तो आप ज्यादा फी ऑब्वियसली नहीं दोगे ना बस का, राइट। बट अगर बहुत दूर रह रहे हो, लेट से 20 किलोमीटर दूर रह रहे हो, 10 किलोमीटर दूर रह रहे हो, तो दैट विल चेंज, थोड़ा बहुत 100-200 का फर्क आएगा उसके, राइट। बट वो हमेशा बढ़िया होता है, क्योंकि अगर आप कोई और ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लेते हैं कि यूजुअली लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली, किसी एक कैब वाले से बात कर लिया, गाड़ी वाले से, वैन वाले से बात कर लिया, तो वो बच्चों को भर के लाएगा। बट मान लो किसी कारणवश वो नहीं आ पाया तो, और उसने जिसको भेज दिया, आपको इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो बहुत अच्छा ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर है, राइट। बट स्कूल वाले जब किसी को हायर करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं इन मामलों में। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि हर जगह पैसे नहीं बचाना चाहिए, राइट। आपको पढ़ाना है तो हर जगह अगर आप बचाने जाओगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो जेन्यून चीजें हैं उसमें तो आई बिलीव कि यहाँ पे सेफ्टी का भी तो सवाल है ना, राइट। द क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ चाइल्ड सेफ्टी। तो आई बिलीव कि यूज स्कूल का ट्रांसपोर्ट, दैट इज मोर रिकमेंडेड देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि आप किसी एक्सटर्नल आदमी को इन्वॉल्व कर रहे हो, और स्कूल विल टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट। अब आप समझो ना सर, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट स्कूल बस जा रहा है और ठीक है, और बीच में कुछ भी होता है, ABCD कुछ भी हो रहा है सर, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि स्कूल अगर जाके पुलिस स्टेशन में कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें, उस रोड पे कुछ लोग घूमते हैं जो परेशान करते हैं कुछ भी, पुलिस वाले या फिर जो भी अथॉरिटीज है वो बहुत जल्दी एक्शन लेगी। वहीं पे सर मैं अपने बच्चे को अकेला भेज रहा हूँ और मैं जाके करूंगा, और मैं एक नॉर्मल सिविलियन हूँ, तो माइट भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरी तुरंत नहीं सुनी जाएगी। जितना जल्दी एक स्कूल बोलेगा और सुना जाएगा, उतना जल्दी मेरा नहीं सुना जाएगा, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ना। तो इसलिए एज अ टीचर, एज अ पर्सन जिसने देखा है बहुत सारी चीजें, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा ऑटो से जा रहा था। अब ऑटो वाले क्या करते हैं पता है, बीच में और लोगों को भर लेते हैं। आगे ऑटो वाला चला रहा है, दो इधर दो इधर, ऑटो पलटी खा गई मेरे नजरों के सामने का। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, और उनको कितना लगा नहीं लगा मैं वो तो नहीं देख पाया, क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं रुका और फिर मैं क्या करूँ अब देख, आई हेल्प देम एंड मैं निकल गया, ठीक है। बट आप सोचो सर, छोटे छोटे बच्चे थे,
तो ट्राई करो कि अगेन सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। क्लोज्ड व्हीकल हो, सेफ व्हीकल हो। एंड स्कूल वाले बस में क्या होता है कि देयर इज अ मोस्टली अगर छोटे बच्चे हैं ना तो दो लोग और होते हैं, एक कंडक्टर होता है राइट, और कोई अगर एक लेडी स्टाफ भी कोई होती है, कोई प्यून होता है मोस्टली, ठीक है। तो देर आर पीपल जो हेल्प करेंगे, राइट। तो दैट हेल्प्स अगेन, दैट्स अ बेटर चॉइस। तो आई विल सजेस्ट कि डोंट ट्राई टू कट डाउन ऑन दैट। ट्राई गो प्रायोरिटी सेफ्टी को दो। दैट्स माय सजेशन, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि अंत में फैसला तो आप ही को लेना है, राइट, जो जिनके बच्चे हैं। I think safety is always paramount, like जो भी Right. yeah, like And they're kids, no? yeah, end of the day, it's the kids. So my next question is like again it's related to this only. अभी इतना खर्चा पानी हो रहा है तो अभी पेरेंट्स का माइंडसेट हो गया कि they are shifting to double income, no kids. What's your opinion about it? इस पे तो मेरा इतना ही बोलना रहेगा कि इट्स अ चॉइस बिकॉज आई एम नॉट मैरिड, राइट। और आई एम ओनली, मेरा सिंगल इनकम है, कोई मतलब जो फैमिली के साथ जो खर्चे और अपने खर्चे, दैट इज इट। और मेरा कोई बच्चा नहीं है अभी अपना तो कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस्ड अबाउट दैट एंड बट जितना मुझे लगता है कि इट्स अ चॉइस अगेन। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं सर, राइट, कि सीबीएसई, स्टेट बोर्ड या आईसीएसई में क्या होता है नहीं होता है, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, इट डिपेंड्स फ्रॉम द स्कूल टू स्कूल, थोड़ा चेंज होता है, बढ़ता जाता है। बट अगर बच्चा ही नहीं है तो सर डिस्कशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं है सही बात है ना सर कि अगर किसी का बच्चा ही नहीं है तो वो डबल इनकम हो, सिंगल इनकम हो, बट स्कूल, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई का कोई सवाल ही नहीं है। बट हाँ, अब आई डोंट नो कि अगर कोई इंसान इसलिए फैसला ले रहा है कि बच्चे होंगे तो उसको स्टेट बोर्ड में भेजना पड़ेगा, सीबीएसई में भेजना पड़ेगा, आईसीएसई में भेजना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों मिलके कमाएंगे, तो क्या करोगे पैसों का, राइट? आफ्टर अ टाइम क्या होगा उसका? और अगर थिंक अबाउट इट कि अगर आपके बारे में, मेरे बारे में भी अगर हमारे पेरेंट्स ने ऐसे सोचा होता तो सर, राइट। तो इट्स ए पर्सनल चॉइस अगेन, आई विल से। आई डोंट बिलीव इन दिस पर्सनली। मैं मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं है, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे ये पता है राइट तो इट्स इट्स अ चॉइस सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया मेरे जैसे यंगस्टर के लिए ये What is the role of a government or educational institute to play in reducing the financial burden on families preparing for these exams? नाउ इट डिपेंड्स कि इनकम क्राइटेरिया क्या है, राइट। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज निकालती हैं दैट इज लाइक कि स्टेट बोर्ड के लिए है तो पूरे स्टेट के लिए, राइट, ईच एंड एवरी स्कूल। हाँ, बट इफ विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक कि गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स है, तो गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, राइट। तो वहाँ से जो बच्चों से लिया जाता है दैट अमाउंट इज लेस, दैट रिड्यूसेस द बर्डन, क्योंकि जो ट्यूशन फी है दैट इज पेड बाय द गवर्नमेंट, डेवलपमेंट फी गवर्नमेंट देगा, राइट। एंड डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर कोई चेंजेस है, नए बेंचेस लाने हैं, कुछ कुछ बाहर कुछ कराना है, तो गवर्नमेंट विल फंड दोज थिंग, राइट। प्राइवेट में दैट इज नॉट द केस। जो ट्रस्टी हैं, जिनका स्कूल है, जो मैनेजमेंट है, दे हैव टू टेक आउट दैट मनी एंड दे हैव टू बर्न दैट मनी। तो द राइट, देर आर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें। बट प्राइवेट में क्या होता है कि मोस्टली जो पेरेंट्स भेजते हैं वो जानते हैं कि इतना पैसा तो लगने वाला है, एंड दे हैव देयर बजट इन बैक ऑफ देयर माइंड। तो फिर उनको मैनेजमेंट कई बार बताती भी नहीं है, बट स्टिल कंसिडरिंग कि 11th-12th की हम बात करें या फिर हायर एजुकेशन की भी अगर हम बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली 11th-12th के बाद बच्चा जाएगा, तो देर आर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, बट दैट डिपेंड्स कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए का फायदा उठाने, राइट। फॉर एग्जाम्पल, नॉट रिलेटेड टू स्कूल बट आई शेयर एग्जाम्पल, देयर इज समथिंग कॉल्ड TWFS, अगेन थोड़ा वर्ड इधर उधर हो सकता है, इसको बोलते हैं ट्यूशन वेरियर फी करके कुछ है, ठीक है। जो तो व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग 12th तक तो मैं बढ़िया चल रहा था, मैंने आपको बताया 11th-12th भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में किया, मेरे बच्चे, राइट। तो वहां पे मेरा जो फी गया 5,000 10,000 में मैंने पूरा 11th-12th किया इन 10,000 2017-18 आई थिंक, हाँ 16-17-18 में मैंने किया है दैट दोज एकेडमिक ईयर, एंड 10,000 में मेरा पूरा हो गया। उसके अलावा मुझसे स्कूल वालों ने 1 रुपये नहीं मांगा कभी किसी चीज के लिए भी, बिकॉज इट वॉज अ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। एंड आई गॉट अ सीट इन दैट, क्योंकि मेरे 10th में नंबर अच्छे थे और थोड़ा पहचान भी सही था वहां पे, तो हो गया ओके। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट कि आपको सीट मिलता है कि नहीं मिलता है, और नंबर तो होने ही चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट स्कूल में ना एक्सटर्नल अथॉरिटीज आते हैं एंड दे आस्क क्वेश्चन कि भाई इसको तो 66% है, ये ओपन क्लास का है, ठीक है, इसका कास्ट भी ओपन है, तो इसको कैसे मिल गया? एट दैट टाइम द मैनेजमेंट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट,
तो दे ऑल्सो मेक श्योर कि उसके, अगेन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर एक्चुअली आंसरिंग दिस, कि प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट में, ठीक है, मेरे पास जो डेटा है, अगेन इट कैन चेंज ओवर टाइम, 3% सीट होता है उन लोगों के लिए जो स्पेशली चैलेंज्ड है या ब्लेस्ड है, समवन इज एटलीस्ट किसी के आवाज में कोई चैलेंज है या फिर विजन से रिलेटेड चैलेंज है, तो देर आर 3% सीट कि ऐसे बच्चों को वो मिलना चाहिए एडमिशन, बिकॉज देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब जो स्पेशली चैलेंज्ड है, ब्लेस्ड है, वो भी एक नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, दे विल सिट विथ यू, दे विल स्टडी विथ यू, यू कैन नॉट लाइक उनको आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते उनके चैलेंज के लिए। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो गवर्नमेंट स्कूल्स में 3% होता है, और 3% के बियॉन्ड अगर कोई आ रहा है तो उसको जनरल में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो देर आर सर्टन रिलैक्सेशन फॉर दैट। Got it. So basically, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था, like it's about a scholarship या हाँ, तो देर आर स्कॉलरशिप्स, देर आर डिफरेंट स्कॉलरशिप, बट इट डिपेंड्स कि कुछ जनरल वालों के लिए भी आता है, बट इट हैज अ अपर लिमिट कि इतना ही मिलेगा आपको, एंड दैट डिपेंड्स ऑन आपके पेरेंट्स का राशन कार्ड है कि नहीं है, उनका इनकम सर्टिफिकेट। ना व्हेन वी से इनकम सर्टिफिकेट ना, मैंने मिसअंडरस्टैंड किया था इसको, और बहुत लोग करेंगे, कि जो हम ITR फाइल करते हैं, दैट इज नॉट योर इनकम सर्टिफिकेट। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा, आपके आसपास में जो तहसीलदार होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वहां के जो ऑफिसेस होते हैं ना, वहां से बना के मिलता है, और दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर राशन कार्ड। और आपका डोमिसाइल कहाँ का है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको पता होगा क्या होता है, राइट, कि आप कहाँ के रहवासी हो, कहाँ के आप रहने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई वॉज बॉर्न इन बिहार, तो मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बिहार के एक हॉस्पिटल, कि मैं वहां पे लाइक वहां पे बॉर्न हुआ था, बट बॉर्न आफ्टर दैट आई वाज बॉट अप इन महाराष्ट्र। तो कहीं पे भी टू गेट, इन ऑर्डर टू गेट डोमिसाइल, आई डोंट नो द नंबर, बट आई थिंक 10 साल इज द, कि 10 साल अगर आप वहां पे रह जाते हो तो आप वहां का डोमिसाइल बना सकते हो। तो आई गॉट द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, राइट। तो डोमिसाइल भी होना चाहिए पहली चीज, क्योंकि आप उस स्टेट में जाकर के, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके, इवन इफ यू आर फ्रॉम CBSE, तो किसी स्टेट में कहीं, यूनियन टेरिटरी में कहीं तो हो आप, राइट, तो वहां पे जाकर के आप उस बेनिफिट को लेने वाले हो। तो देर इज अ कैप ना, कि इतना फंड है गवर्नमेंट का इस चीज के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए, तो उन्हीं को मिलना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के लोगों को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, राइट, किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, दैट्स द वे इट वर्क्स। अगर आप बिहार में हो तो बिहार के लोगों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, राइट। सो ये है। अच्छा, इसके अलावा देयर इज अनदर थिंग कि कई सारे स्कूल जो होते हैं माइनॉरिटी वाले स्कूल्स, सिंधी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, तो वहां पे फिर उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बाकी लोगों को उतना नहीं मिलता है, राइट। तो देर आर डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स जिसका फायदा उठाया जा सकता है, एंड आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट TWFS। तो मैं अपना 11th 12th तो मैंने कम में ही किया, मुझे इंजीनियरिंग के टाइम किसी ने बताया नहीं, आई डोंट हैव एनी एल्डर ब्रदर जो मुझे ऐसा बताएगा, और घर परिवार में भी लाइक वी हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली, जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब अलग अलग स्टेट में इंडिया में फैले हुए हैं पूरे। तो एंड बीइंग ऑनेस्ट, आप एक समय के बाद आपने रियलाइज किया होगा, मैंने किया, कि नो वन केयर्स कि तुम क्या कर रहे हो। बात करेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि तुम ये कर लो वो कर लो, बट आफ्टर दैट नो वन केयर्स कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना देखो। तो इन दैट केस मेरे को पता नहीं था, एंड मैंने एजुकेशन लोन ले लिया, लोन सेंक्शन हो गया, एंड इट वाज अराउंड लोन ऑफ 4 and 5 लाख रुपीज, लाइक, ठीक है, जो मुझे 1 साल का फी तो मैंने भर दिया था, पापा ने पे कर दिया था, बट बाकी 3 साल के लिए मुझे लोन लेना पड़ा। पापा ने बोला कि अपना खुद देख, ज्यादा रिस्पॉन्सिबली पढ़ाई करेगा। आई सेड ओके, और मुझे कहा पैसे देने थे, बैंक दे रही थी, आई वाज फाइन विद दैट, ठीक है, बट नाउ आई एम रिपेइंग इट। अब मुझे पता चल रहा है कि भाई देना पड़ता है, ओके। एंड वहां पे मुझे 70-80 हज़ार 90 हज़ार, डिपेंड, फी कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो मुझे देना पड़ रहा था। बट मेरा ही एक दोस्त था, उसका इनकम मुझसे भी मतलब थोड़ा ज्यादा ही होगा, मेरा इनकम कम था, इसलिए हमने लोन लिया, एंड यू नो व्हाट अमाउंट ही पेड पर ईयर, 12 to 13,000, दैट्स इट। यहाँ पे जो मेन फी होता है प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो ट्यूशन फी होता है, टीचर्स को सैलरी देने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बार डेवलप हो गया, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्लीनिनेस के लिए जो स्टाफ है वगैरह उनकी सैलरी जाएगी, बाकी तो मेन ट्यूशन फी है। वो जो इंजीनियरिंग में, हायर एजुकेशन में, वही फी गवर्नमेंट पे करेगी आपकी। ऐसा नहीं कि कॉलेज को नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट इट विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट का फंड। देयर इज ऑल्सो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन करके भी एक चीज होता है ओपन वालों के लिए। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग इज अबाउट ओपन। अच्छा, इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से हो, OBC से हो, ST से हो, NT से हो, जो ऐसे कास्ट होते हैं, तो इनके लिए भी अलग रिलैक्सेशन होते हैं, राइट। तो यू कैन यूज दोज रिलैक्सेशन। उसके लिए क्या होता है कि मोस्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई गवर्नमेंट का बैंक, जैसे कैनरा बैंक है, तो गवर्नमेंट जो बैंक है ना,
उन बैंक्स में आपका अकाउंट होना चाहिए। मोस्टली बहुत सारे ये स्कीम टू स्कीम भी चेंज होता है, राइट? कि जब मैं 11th-12th में था तो वहां पे जो बच्चों को स्कॉलरशिप का अमाउंट आता था, लाइक इट इज ऑल्सो लाइक दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो व्यूअर्स है, कि पहले आपको पे करना पड़ेगा, बाद में वो आएगा, राइट? और उसके बाद फिर वो एक फ्लो बन जाता है, तो पता होता है स्कूल और वो मिल करके वो डिसाइड हो जाता है, तो डायरेक्टली स्कूल को पैसा आ जाता है। तो देयर आर डिफरेंट स्कीम्स कमिंग इन, बट आप यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, राइट? लेट्स से दिस ये वीडियो सर कोई 1 साल बाद देख रहा है, राइट? वी हैव 100 million सब्सक्राइबर ऑन दिस चैनल एंड कोई बाद में देख रहा है सर ये वीडियो, या तो उसको वो इस पॉइंट पे नहीं जा सकता कि यही होगा। नेम्स कैन चेंज, एक्रोनिम कैन चेंज, एंड यू नीड टू आस्क क्वेश्चन। प्लीज पूछो, देयर इज सेइंग ना कि पूछोगे तो मिलेगा, राइट? सो दैट इज द थिंग। So now the last question, how do you see the cost of education and exam preparation evolving in the coming years, and what advice do you have for parents and students to prepare changes for these changes? Like I believe na कि the cost of tuition fee, like external tuition, not of schools and schools are going to adapt different technologies, right? They are like, just we have talked in this कि there are schools जो स्मार्ट बोर्ड यूज कर रही है, स्कूल पैसा कहाँ से लाएगा, राइट? तो दे आर गोइंग टू आस्क, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द फी। अब स्मार्ट बोर्ड यूज होगा तो बिजली बिल भी बढ़ेगा, भाई, राइट? अब स्कूल में अगर एसी है तो वो चलेगा, अगर ठंड में हीटर है अगर वो चलेगा, तो द कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? तो बेसिकली इट डिपेंड्स कि क्या मिल रहा है आपको। तो आई थिंक जो स्कूल फी होगा, अगर वो स्कूल डेवलप कर रहा है, एंड इफ इट्स अ प्राइवेट स्कूल, अल्टीमेटली द कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज थिंग्स आर गोइंग अप, राइट सर? प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर सैलरी ज्यादा डिमांड करेंगे, राइट? तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज, ऐसा मुझे लगता है। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, उस टाइम में क्या है नहीं है, बट इट इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा स्कूल में, दे विल इंक्रीज द थिंग्स, क्योंकि वो पैसा इनपुट तो वहीं से आ रहा है ना मेन, अगर एक प्राइवेट स्कूल है। बट अगर मैं ट्यूशन क्लासेस की बात करूं, तो पीपल आर वेरी अवेयर राइट नाउ। आई नो, मतलब मुझे सर, मेरा चैनल है, इट हैज 1 लाख सब्सक्राइबर, यू नो, तो मेरे को ऐसा थाउजेंड्स ऑफ कमेंट आता है जो बच्चे कहते हैं सर पूरा फ्री में पढ़ा सर। ओके, पूरा फ्री में पढ़ा, मस्त पढ़ाया सर आपने, कमेंट में पूरा तारीफ करूंगा सर आपकी, मतलब बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत मजा आता है देख करके, ठीक है? तो सर आप समझो ना, 1,000 बच्चों को भी अगर मैंने फ्री में पढ़ा दिया 1 लाख में से, वो 1,000 बच्चे अगर सर कहीं जाके 25-25 हजार रुपए भी देते, सर लॉट ऑफ मनी ना, जो किसी का बंद नहीं हुआ। तो प्राइवेट वालों को क्या है, इन ऑर्डर टू कम्पीट, प्राइवेट ट्यूशन वगैरह की हम बात करें, दे हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी फर्स्ट, ठीक है? दूसरा, दे हैव टू अडेप्ट द हाइब्रिड मॉडल। अभी ऑनलाइन में सर मेरा बैच है, मैं कैसे वेल सेल करता हूँ कि आई विल से, अरे तुम आओगे मेरे क्लास में, मैं तुमको रिकॉर्डिंग भी दूंगा। ऑफलाइन अगर तुमको खांसी हो गया, तुम नहीं गए, तो उनको भी वो करना पड़ेगा। तो इनिशियली देयर विल बी अ प्राइस रेज इन ऑफलाइन ऑल्सो, बट उसके बाद उनको नीचे करना ही पड़ेगा। दूसरा रीजन क्यों मैं कह रहा हूँ कि प्राइस विल गो डाउन, बिकॉज सर कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो इंक्रीज। आर यू गेटिंग इट? अभी एक जगह पे सर 4 क्लास है, 4 नए लोगों ने फिर से क्लास खोला, 4 नए इंस्टीट्यूट है, कुछ वो भी आ गए सर, क्या कहते हैं उसको, क्या, फ्रेंचाइजी मॉडल वाले भी बहुत सारे आ गए, राइट? तो इन दैट केस अब सर एक जगह पे जहाँ पे 4 क्लासेस थे और वो डिमांड पूरी कर रहे थे, अब क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, राइट, तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सर, हर जगह कुछ ना कुछ बच्चे तो जाएंगे ही, वरना वो खुलेगा ही क्यों सर, राइट? तो इसके कारण क्या होगा कि दे कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस, क्योंकि नॉट एवरी वन विल सी दैट टॉपर वाला बोर्ड एंड ही इज गोइंग टू ज्वाइन। खाली तुम वो बोर्ड दिखा के उस एरिया में एडमिशन ले लोगे। दूसरा सर, ऑफलाइन में एक लिमिट भी होती है कि तुम कितने बच्चों को बिठा सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कॉस्ट है। तो दे विल आइदर स्टिक टू द प्राइस जो मिनिमम होगा उस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से, एंड बहुत हल्का फुल्का बढ़ाएंगे, एंड दे विल, दैट इज ऑल्सो रिस्की फॉर देम, क्योंकि तुमने अगर प्राइस बढ़ाया है, कोई और क्या करेगा सर, उससे भी कम करेगा, एंड ही विल टेक दो स्टूडेंट। एंड अब क्या हो गया ना सर, व्हाट आई बिलीव ना, कि बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ लाइक दिस सोशल मीडिया, अगर हम पर्टिकुलरली बोले, एंड मोर आई थिंक, क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब यूज करता हूँ बीइंग ऑनेस्ट, इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा रील्स वगैरह देखता नहीं, ट्विटर का कोई ऐसा मतलब यूज नहीं, क्योंकि मैं K-12 वाले बच्चों से डील कर रहा हूँ, तो नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। तो मैं यूट्यूब ज़्यादा यूज करता हूँ, एंड आई हैव सीन कि देयर आर डिफरेंट पीपल, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे जो बहुत अलग अलग टाइप के कंटेंट बनाते हैं, एंड लोग अवेयर हो जाते हैं। सर आप ही देखो, मैं और आप बैठ करके आज रात को क्या डिस्कस कर, अब इससे सर अगर मान लो कि 1000 लोग भी देख करके अवेयर तो हुए, राइट सर? तो व्हेन पीपल विल वॉच दिस, और इतना डिटेल जब वो देखेंगे, तो लोग अवेयर हो रहे हैं सर,
पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि जो मेरे को ऑफलाइन वाला दे रहा था वही ऑनलाइन वाला भी दे रहा है। मेरा पैसा जहाँ पे मैं 50 दे रहा था वहां पे मैं 5 दे रहा हूँ। अभी मैं जो ये 45 बचेगा इसको म्यूचुअल फंड में राइट। तो जस्ट जस्ट अ जोक, बट पीपल आर गेटिंग स्मार्टर सर, राइट। और सर अल्टीमेटली क्या होता है सर, लास्ट एक पॉइंट ये भी है कि बच्चा, मैंने क्या देखा सर कि टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो स्कूल में जाते हैं, ठीक है। देयर इज अनदर सब पॉइंट कि कई सारे स्कूल में ना सर अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस, जैसे मेरे जो वीडियोस है वो बहुत सारे स्कूल वाले को दिखाया जाता है सर। आप बिलीव नहीं करोगे इस बात पे, बट ये हो रहा है। मतलब बच्चे मुझे ना सर फोटो लेके भेज रहे हैं, बच्चे मुझे कमेंट में डाल रहे हैं, और मेरे पास मेरे बैच में बच्चे इसलिए एनरोल कर रहे हैं, बोले सर जब स्कूल में आप ही के वीडियो से पढ़ाते हैं तो कहीं और एडमिशन क्यों राइट। तो दिस इज हैपनिंग, तो आई नो, एंड और भी लोगों के किए जाते हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, बीइंग ऑनेस्ट, राइट। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन सर। तो क्या होगा ना कि अब क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर मेरे जैसे और भी लोग हैं, ठीक है, और मुझसे भी अच्छे लोग हैं, तो पीपल आर गोइंग देयर, और पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि यार मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, फिर ट्यूशन जा रहा है, लेकिन लास्ट में तो मोबाइल लेके पढ़ रहा है, तो क्यों ना इसको मोबाइल में ही पढ़ने दिया जाए। हाँ, बट द थिंग इज कि सर सारी अच्छी बात है, बट इट हैज इट्स ओन डिसएडवांटेज। अगर एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो ही नीड्स टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। अगर तुम्हारा इतने बजे क्लास है तो हो, वरना ऑनलाइन इज नॉट फॉर यू, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो ऐसे तो ऑफलाइन भी आपके लिए किसी काम का नहीं है, इन दैट केस इफ यू आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन ऑनलाइन तो और ज्यादा खतरनाक है राइट। इट इज मोर डेंजरस, क्योंकि वहां पे आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो। ऑफलाइन में कंपलसरी जाओगे तो सही, टीचर चौक थक के मारेगा तो तुम्हारा ध्यान आएगा। यहाँ पे यू नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन की क्लास खोल के बैठना पड़ेगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज बट यू हैव टू यूज दैट, यू नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। तो वो नहीं होगा तो नहीं चलेगा, एंड इसका कॉस्ट तो सर नीचे ही जाएगा या फिर उसी जगह पे टिका रहेगा। और नॉर्मल जो महंगाई बढ़ रही है ना, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है, बाकी इट विल रिमेन द सेम। ज्यादा बहुत ज्यादा अचानक से ऊपर नहीं जाएगा। Thank you, sir. This was really interesting, insightful discussion that we had. This was So, very long. yeah, I loved it a lot. Like, I'm sure everyone who watched this video like would loved it. So, tell us your views about your kids' expense in the comment section. Also, if you have any doubts related to any topics related to any subject, then don't forget to follow Shubham Sir's channel's link. It is there in the description. Until next time, Dil Se Money with love, more videos by subscribing us. Peace. Thank you, sir. Thank you so much.